ہم انسان اپنی زندگی کو دکھوں سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں. دکھوں کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے، ان کی انٹینسٹی یا ان کی شدت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہر شخص دکھوں سے، مصیبتوں سے، کرب سے گزر رہا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دکھوں کی حقیقت جانیں. دکھ ناقابل فراموش حقیقت ہیں جو ہماری دنیا اور زندگی کا حصہ ہے. دنیا کی بڑی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. خدا کا کلام اس بات کا بیان کرتا ہے. دکھ ناقابل فراموش حقیقت ہے، اس دنیا اور ہماری زندگی کا حصہ ہے. دنیا میں دکھوں کی موجودگی خدا کی خواہش نہیں تھی. خدا نے سب کچھ اپنی خواہش کے مطابق بنایا اور سب کچھ اچھا بنایا. خدا نے کبھی نہ چاہا کہ انسان دکھوں سے گزریں. خدا نے تو انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی برکت دے دی تھی کہ بڑھو، پھلو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو. اس لیے خدا پہ الزام نہیں دینا چاہیے کہ خدا ہمیں دکھ دیتا ہے، خدا ہمیں ہماری زندگی میں مصیبتیں لے آتا ہے. خدا کی یہ خواہش نہیں تھی. خدا نے سب کچھ اچھا بنایا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اچھے حالات میں خوبصورت زندگی گزاریں. دکھوں کے بارے میں خدا نے پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا. خواہش نہیں تھی خدا کی کہ انسان دکھ اٹھائیں، لیکن اس نے بتا ضرور دیا تھا کہ اگر تم میرے نافرمان ہو جاؤ گے تو تب دکھ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائیں گے. دکھ خدا کی عطا کی ہوئی شادمانی، اطمینان اور آسودگی کی عدم موجودگی ہے. خدا نے انسان کو جو خوبصورت ماحول دیا، اس ماحول سے جب نکل گئے تو دکھ مل گیا. خدا نے جو زندگی انسان کو دی، جب وہ زندگی انسان کے ہاتھوں سے چھن گئی تو دکھ شامل ہو گیا. خدا نے جو خوبصورت چیزیں انسان کو لطف اندوز ہونے کے لیے باغ عدن میں دے رکھی تھی، جب انسان ان سے محروم ہو گیا تو دکھ آ گئے. سائنس کے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس میں روشنی یا لائٹ کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اور ڈارکنیس یا تاریکی کے بارے میں صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے دی ایبسینس آف لائٹ از ڈارکنیس. اسی طرح سے دکھ خدا کی طرف سے عطا کی گئی شادمانی، اطمینان اور آسودگی کی عدم موجودگی ہے. جب وہ خوشی، جب شادمانی، جب سکون اور چین اور اطمینان اور سیٹسفیکشن یا آسودگی جو خدا عطا کرتا ہے وہ انسان سے چھن جاتی ہے تو انسان دکھ محسوس کرتا ہے. دکھ خدا کی پناہ سے نکل جانے کی حالت ہے. جب تک ہم خدا کی پناہ میں رہتے ہیں ہمیں دکھ کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خدا کے پروں کے نیچے ہیں، ہم خدا کے جلال کے تحت ہیں، ہم خدا کے بازوؤں میں ہیں، خدا کے ہاتھوں کے نیچے ہیں. خدا کی حفاظت اور تحفظ، اس کی شیلٹر، اس کی فینس میں ہے. جب خدا وہ فینس ہٹا دیتا ہے، خدا جب باڑ ہٹا دیتا ہے، خدا جب تحفظ واپس لے لیتا ہے، خدا جب سیکیورٹی واپس لے لیتا ہے، خدا جب اپنے حصار سے انسان کو نکال دیتا ہے تو پھر دکھ محسوس ہوتا ہے. وہ حالت کہ جب انسان خدا کے عطا کیے ہوئے شیلٹر، تحفظ، حفاظت، پناہ سے نکل جاتا ہے تو وہ حالت دکھ ہے. عدن سے انسان کو نکالا گیا. جب تک باغ عدن میں تھے انہیں کوئی دکھ نہیں تھا، انہیں کوئی مصیبت نہیں تھی، انہیں کوئی درد نہیں تھا، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی. جیسے ہی گناہ کر دیا اس کے ساتھ ہی پریشانیاں شروع ہو گئیں اور خدا نے عدن سے نکال دیا کہ اب
तुम अपने मुंह के पसीने की रोटी खाओगे, औरत दर्द से बच्चे जनेगी, तुम दुख सहोगे जमीन पर। खुदा ने इस्राएल से भी कहा कि जब तुम मेरे नाफरमान हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तहफ्फुज हटा दूंगा, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन छोड़ दूंगा और तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा, और फिर तुम आफतों और बलाओं और मुसीबतों के नरगे में आ जाओगे। ज़बूर नवीस भी बिलखसूस दाऊद बार बार यह दोहराता है कि तूने मुझे अपनी हजूरी से खारिज कर दिया, तूने अपना चेहरा मुझसे हटा लिया, तूने अपना मुंह मुझसे छुपा लिया, तू मुझसे दूर हट गया तो मैं दुख सह रहा हूं। और दुख हमारी ख्वाहिश और मंसूबे की अदम तकमील की हालत है। खुदा ने बनी इस्राइल से यह कहा था कि अब तुम अपनी जान को दुख दिया करना। किस तरह से? कि तुम अपनी खुशी के कामों से दूर रहना, अपनी ख्वाहिशें पूरी ना करना, अपने मंसूबे ना बनाना। बिलखसूस उसने कहा यौम कफारा के हवाले से कि तुम उस रोज अपनी अपनी जान को दुख देना, तुम अपने गुनाहों पर मातम करना, तुम अपनी खताओं पर रोना, तुम अपने गुनाहों पर पछताना, गम करना और अपनी ख्वाहिशों से मुंह मोड़ लेना। अपने मंसूबे नहीं बनाने, बल्कि जो काम मैं कहूं तुम्हें वो करना है। अपनी ख्वाहिश और अपने मंसूबे का पूरा ना होना ये दुख देता है। दुख शैतान की तरफ से भी आते हैं। दुश्मन है वो खुदा का, दुश्मन है कायनात का, दुश्मन है तमाम मखलूकात का, दुश्मन है इंसानों का। वो कभी किसी को खुश नहीं देख सकता। जब जब खुदा के लोग खुशी में होते हैं, इब्लीस कोई ना कोई काम ऐसा करता है कि खुदा के लोगों को दुख दे। जहां खुदा का काम बड़ी तरक्की में हो रहा होता है, वहां इब्लीस हमला कर देता है कि यह काम बिगाड़ दूं। जहां खानदानों में रिश्ते खूबसूरत होते हैं, इब्लीस वहां सींध मारता है, वहां वो नकब लगा देता है ताकि इस खानदान में नफाक डाले, इन्हें तोड़ के रख दे, इनके रिश्ते टूट जाएं। अय्यूब कितना खुश था, उसकी बीवी और उसके बच्चे कितने खुश थे, लेकिन इब्लीस से बर्दाश्त नहीं हुआ। खुदा से उसने मामला तय कर लिया कि मुझे इजाजत दे कि मैं जरा अय्यूब पर हाथ चलाऊं। अय्यूब इब्लीस के हाथ से दुख उठाता है। वजह क्या हुई कि जैसे ही खुदा ने अपनी बाढ़ अय्यूब के गिर्द से हटा दी, बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान ने कहा कि तूने जो बाढ़ उसके गिर्द लगा रखी है उसकी वजह से उसे दुख नहीं मिलता। और जब खुदा ने अपनी बाढ़ हटा दी, खुदा ने इब्लीस को इजाजत दे दी कि मैं अय्यूब की अब हिफाजत नहीं करूंगा, तो अय्यूब की जिंदगी में दुख आने शुरू हो गए। बुरी रूहें इंसानों पर हमलावर होती, उन पर काबिज हो जाती हैं और वो इविल स्पिरिट्स दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। शैतान अपने एजेंट्स बुरी रूहों के जरिए या माहौल ऐसा बना देता है कि जिसमें खुदा के लोगों को दुख दिया जाए। इंसान भी दूसरे इंसानों को दुख देते हैं। खुदा ने अब्राहम पर यह वाज़े कर दिया था कि तेरी नस्ल मिस्र में, जो उनका मुल्क नहीं है, उसमें परदेसी होंगे, उसमें गुलाम रहेंगे और मिस्री उन्हें दुख देंगे 400 बरस तक। यशवा की किताब में लिखा है कि अकन की वजह से खुदा के लोगों को दुख मिला। खुदावंद यस्सु मसीह उसे भी दुख मिला। गैर कौमों के हाथ दिया गया, उनके हवाले किया गया और अपनी ही कौम के लोगों ने उस पर जुल्म किए। सो इंसान दूसरे इंसानों को दुख देते हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम इंसान एक तो इब्लीस के हाथों दुख उठाते हैं, वो हम सब का मुश्तरका दुश्मन है, वो किसी इंसान का हिमायती नहीं है।
اور دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دکھ کا باعث بن جاتے ہیں. جیسے یونتن کہتا ہے کہ میرے باپ نے، ساؤل بادشاہ نے اپنے لوگوں کو دکھ دیا ہے. ہم انسان دوسرے انسانوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، اس میں اتنی پریشانی اور دکھ شامل کر دیتے ہیں کہ انسان برداشت کرتے کرتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ان کی بس ہو جاتی ہے، ان کا لیول آف پیشنس، ان کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں انسان سنگین قدم اٹھا لیتے ہیں اور یا اپنی جان لے لیتے ہیں یا کسی اور کے لیے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں. یہ ہم انسانوں کے سوچنے کی بات ہے. دنیا میں دکھ انسانوں نے سب سے زیادہ ایک دوسرے کو دیے ہیں. یہ جنگیں، لڑائیاں، کام کی جگہ پہ ایک دوسرے سے جھگڑے، رائیولری، ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، دکھ دینے کے لیے یہ سارے کام ہیں، تکلیف دینے کے لیے ہیں ایک دوسرے کو. ہم انسانوں کو سوچنا ہے کہ دکھوں کی حقیقت ایک بڑی یہ ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں اس دنیا میں دکھوں کے. اگر ہم کسی کو دکھ دینا کم کر دیں تو اس دنیا میں دکھ کم ہو جائیں گے. دکھ خدا کے علم اور مرضی کے بغیر نہیں آتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہمیں دکھ دے رہا ہے. یہ بات ہے کہ خدا کے علم میں ہوتا ہے، خدا کو پتا ہوتا ہے، خدا کو سب علم ہے کہ کس کو دکھ مل رہا ہے، کس کو ملے گا. اور خدا کی مرضی اس طرح سے شامل ہوتی ہے کہ خدا ہونے دیتا ہے، خدا روکتا نہیں ہے، کیونکہ انسان نے خود کام ایسے کیے ہوتے ہیں کہ جس سے خدا کہتا ہے اب تیری اپنی چوائس ہے، یہ تیرا اپنا چناؤ ہے. دس از یور چوائس. تو چاہتا ہے کہ یہ دکھ تجھے ملے تو میں اجازت دے رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا دکھ دے رہا ہے، بلکہ خدا جانتا ہے اور خدا روکتا نہیں. بس جانے دو، ملنے دو اسے دکھ. اور بعض صورتوں میں خدا انسانوں پر دکھ آنے دیتا ہے، جیسے ایوب کے وقت آیا. خدا کے علم میں تھا کہ یہ ہوگا، خدا کو آگے کا بھی پتا تھا کیا ہوگا، اور خدا کی مرضی شامل تھی. ابلیس کے ساتھ جب معاملہ طے ہوا تو خدا نے ابلیس کو اجازت دے دی، اوکے ٹھیک ہے تو جو مرضی کر لے، ایوب میرا ہے اور میرا ہی رہے گا. خدا کو اعتماد تھا اس پر. خدا کو معلوم تھا کہ اس جنگ میں ایوب اور میں جیت جائیں گے. خدا نے دکھ نہیں دیا ایوب کو، بلکہ خدا نے اجازت دے دی کہ ایوب کی زندگی میں دکھ آئے. خدا کو علم ہے اور خدا کی مرضی سے دکھ ہماری زندگی میں آتا ہے. اس لیے یہ مت سوچیں کبھی بھی جب آپ دکھوں میں ہوں تو یہ مت کہیں کہ خدا کو پتہ نہیں، یا خدا لا علم ہے، خدا دیکھ نہیں رہا، یا خدا کہیں چلا گیا ہے. خدا کو ہر چیز کا علم ہے، اور خدا اگر نہ چاہے تو کچھ بھی اس زمین پر نہیں ہو سکتا. خداوند یسوع نے کہا کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ ان میں سے ایک بھی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی. تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. خدا نے پہلے سے بتا دیا ابراہیم کو کہ تیری نسل دکھ اٹھائے گی مصر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی طرف سے دکھ ملے، نہیں، دکھ مصری دیں گے، خدا کے علم میں ہے. اور خدا اس کو روکے گا نہیں جب تک کہ 400 برس پورے نہ ہو جائیں ان کے دکھوں کے. اور پھر خروج کی کتاب کے شروع میں خدا موسیٰ سے بات کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے ان کا دکھ دیکھا ہے، میں ان کا دکھ جانتا ہوں. پطرس نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض دکھ خدا کی مرضی سے ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہمیں انہیں قبول کرنا ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا دکھ دے رہا ہے، بلکہ خدا صرف اجازت دیتا ہے کہ اس بندے کی زندگی میں دکھ آ جائے. خدا دکھ نہیں دیتا، بلکہ حالات ایسے انسان پیدا کر دیتے ہیں جس میں خدا کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں
اپنی شیلڈ، اپنی باڑ، اپنی دیوار، اپنے آتشی رتھ، اپنے فرشتوں کا خیمہ اٹھا دیتا ہوں، میں حفاظتی دیوار ختم کر دیتا ہوں، ہولے جو اس کے ساتھ ہونا ہے۔ سو خدا دکھوں سے واقف ہے اور اس کی مرضی کے بغیر دکھ نہیں آتے۔ دکھ ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر آتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ جیسے آدم اور حوا کو خدا نے بتا دیا کہ جس دن تم نے اس میں سے کھایا تم مر جاؤ گے، خدا کی نافرمانی یعنی گناہ کرنے کی سزا موت ہے، وہ تمہیں ملے گی، خدا نے بتا دیا، آگاہ کر دیا، تو بھی انہوں نے خدا کا حکم توڑ دیا، نافرمانی کر دی خدا کی، اور جس پھل کے کھانے سے منع کیا تھا وہ کھا لیا، تو پھر ان کی زندگی میں مصیبتیں آ گئیں۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو شریعت دیتے ہوئے بھی کئی بار یہ لکھوایا کہ جب تم گناہ کرو گے، جب تم میرے نافرمان ہو جاؤ گے، جب تم مجھے چھوڑ کر اور غیر معبودوں کی طرف چلے جاؤ گے، تو میں تم پر سزائیں لاؤں گا، تب تم دکھ سہو گے، کیونکہ میں تحفظ ہٹا دوں گا، میں برکت اٹھا لوں گا، میں اپنی شفقت اٹھا دوں گا، میں سیٹسفیکشن اٹھا دوں گا، میں پراسپیرٹی ہٹا دوں گا، میں بلیسنگز ہٹا دوں گا، میں جوائے اور پیس ہٹا دوں گا، اور تم دکھ سہو گے۔ جب ایک شخص غلط کام کرتا ہے اور سزا اس شخص کو ملنا شروع ہوتی ہے تو پورا خاندان دکھ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، پکڑا جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان پھر بدنام اور رسوا ہوتا، عدالتوں کے چکر کاٹتا، ملاقاتوں کے لیے جاتا، ان کی اولاد اور خاندان کے لوگوں کو چور اور ڈاکو کا خاندان کہا جاتا، تو سارا گھرانہ دکھ اٹھاتا پھر اس میں۔ بنی اسرائیل پر یہ ہوتا رہا کہ وہ خدا سے دور جاتے رہے اور خدا انہیں سزائیں دیتا رہا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ محبت اسی قوم سے کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ سزائیں بھی بنی اسرائیل قوم کو ہی ملی ہیں، کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے اور خدا انہیں سزا دیتا تھا، انہیں دکھ ملتے تھے۔ وہ غیر قوموں کی غلامی میں چلے جاتے، ان کے گھر بار تباہ ہو جاتے، یہاں تک کہ ہیکل بھی برباد ہو جاتی، ان کے پاس عبادتوں کا موقع نہ رہتا، قربانیاں دینے کا موقع نہ رہتا، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی، وہ غلامی میں چلے جاتے، وہ دکھ اٹھاتے اور غیر قوموں کے غلام بن کے ان کی خدمتیں کرتے، دکھ اٹھاتے۔ سو گناہ کی سزا کے طور پر بھی دکھ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور خدا چونکہ عادل منصف ہے، جو مجرم کو، گناہ گار کو ضرور سزا دیتا ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چلو میرے اپنے نے کیا ہے تو اس کو سزا نہیں دوں گا، لیکن کسی غیر قوم والے نے کیا تو اس کو سزا دوں گا۔ خدا عادل منصف ہے، اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جو گناہ کرے اسے سزا دی جائے۔ سو دکھ سزا کے طور پر آتے ہیں، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا خدا کی طرف سے آتی ہے۔ خدا اپنی برکت اٹھا لیتا ہے، خدا تحفظ اٹھا لیتا ہے، خدا خوشی اٹھا لیتا ہے، خدا جو نعمتیں اس نے دے رکھی ہوتی ہیں وہ انہیں اٹھا لیتا ہے، اور انسان پھر خطروں میں گھر جاتا ہے۔ اور وہ ساری حالت، وہ کیفیت کہ جب خدا سب کچھ واپس لے لیتا ہے تو وہ دکھ کی حالت بن جاتی ہے، انسان دکھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، خوشی نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی، خوشحالی نہیں رہتی، آسودگی نہیں رہتی، تحفظ نہیں رہتا۔ انسانی گناہوں کی وجہ سے مخلوقات بھی دکھ اٹھاتی ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا تو خدا نے یہ کہہ دیا، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی اور وہ تیرے لیے اب اونٹ کٹارے اگائے گی۔ زمین لعنتی ہو گئی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، اور رومیو 8ویں باب میں تو وضاحت سے لکھا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مخلوقات بھی کراہتی ہیں، تڑپتی ہیں، روتی ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے انہیں درد لگے ہیں۔
دکھ میں ہے مخلوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے مخلوقات کو بھی دکھ ملتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ ظلم انسان لے کر آیا ہے اس دنیا میں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں، بلکہ ہم پوری مخلوقات اور کائنات کے لیے بھی دکھ کا باعث بنتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ دکھ ہمیں صاف یا پاک کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، خدا ناراض ہوتا ہے، اس کی عدالت سے یہ فیصلہ جاری ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور پھر خدا اپنی برکتیں اور تحفظ اٹھا لیتا ہے اور وہ حالت سزا کی دکھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ دکھ صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پطرس رسول نے لکھا ہے کہ جو جسم کی حالت میں دکھ اٹھاتے ہیں وہ گناہ سے فراغت پاتے ہیں، وہ پاک کر دیے جاتے ہیں، گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں ان کے۔ جو جسمانی حالت میں اپنے گناہوں کی سزا پا لیتے ہیں، ان کا گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سزا، یہ دکھ انہیں پاک کر دیتا ہے، انہیں صاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور زبوروں میں بھی گایا جاتا ہے کہ تو نے ہمیں ایسے تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے، جیسے چاندی یا سونا آگ میں ڈالا جاتا ہے، بھٹی پہ دہکایا جاتا ہے تاکہ اس میں سے گند نکل جائے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو اور ایمانداروں کے ساتھ بھی وہ ایسا کرتا ہے کہ انہیں مصیبت کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صاف ہو جائیں، وہ پاک ہو جائیں، ان میں گندگی اور میل باقی نہ رہے۔ دکھ ہماری بہتری کے لیے بھی آتا ہے۔ دکھ کی حقیقت میں یہ بھی شامل ہے، دکھ ہمیشہ برے نہیں ہوتے، دکھ ہماری بربادی کے لیے نہیں آتے، دکھ ہمیں توڑنے کے لیے ہی نہیں آتے، دکھ ہمیں برباد کرنے کے لیے ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ خدا ایسے دکھ ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے جن سے ہمارے غلط نظریات ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی سدھار لیتے ہیں، ہم گناہوں سے، بدیوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ دکھ ہمیں خدا کے قریب لانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ داؤد کا یہ بڑا تجربہ رہا ہے، جب گناہ کر بیٹھا، خدا ناراض ہو گیا، دکھ زندگی میں آیا، جو بچہ پیدا ہوا وہ مر بھی گیا، خاندان میں بھی پرابلمز آ گئے، اور جسمانی طور پر بھی وہ دکھ سہنے لگا، خدا کے قریب ہو گیا۔ اے خدا معاف کر دے، خدا کے قریب آنے کا وسیلہ بن گئے۔ بنی اسرائیل بار بار گناہ میں گر جاتے اور پھر خدا سزا دیتا، خدا انہیں دکھ دیتا، اور جب وہ اپنے آپ پر دھیان کرتے کہ ہم دکھ سہ رہے ہیں تو پھر وہ اعلان کرتے، آؤ ہم خدا کی طرف رجوع کریں، آؤ خدا کی طرف لوٹیں، کیونکہ ہم دکھ سہ رہے ہیں، خدا کے پاس چلیں۔ دکھ خدا کے قریب کرنے کا بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ ہماری تو اپنی زندگی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم خدا کو تب یاد کرتے ہیں جب دکھ میں ہوں۔ خوشی، شادمانی اور اچھے دنوں میں خدا کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ ہم تو خدا کو یاد بھی نہیں کرتے، ہم تو خدا کو کسی بات میں شامل بھی نہیں کرتے جب ہم سب کچھ اچھا اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی پریشانی زندگی میں آئی، جیسے ہی کوئی تکلیف شروع ہوئی، جیسے ہی کوئی دکھ ملا، فوراً خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، خدایا رحم کر دے، خدایا رحم کر دے۔ ایسے دکھ تو اچھے ہوتے ہیں نا، جو خدا کے قریب لے آئیں۔ اور دکھ ہمیں پرکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، جیسے ایوب پہ آیا، ابلیس نے کہا کہ میں پرکھتا ہوں یہ تیرا سچا بندہ ہے کہ نہیں، اگر اس کو دکھ ملے گا تو یہ تجھے چھوڑ دے گا۔ خدا نے کہا اپنا زور لگا لے۔ آزمائش ہو گئی، ایوب کی آزمائش ہو گئی، اس کے ایمان کی پرکھ ہو گئی، وہ پرکھا گیا دکھوں کے ذریعے۔ اور پطرس رسول نے بھی اپنے پہلے خط کے 4 باب کی 12ویں آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے بھڑکی ہے،
तुम्हारी आजमाइश के लिए, तुम्हें परखने के लिए ये मुसीबत की आग है। यह समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि यह एक अनोखी बात हम पे वाक़ हुई है। यह अनोखी बात नहीं कि अगर दुख मिले जिंदगी में, या आपको परखने के लिए भी हो सकते हैं कि खुदा और इब्लीस, इन दोनों में हमारी जिंदगियों के हवाले से, हमारे ईमान के हवाले से टकराव रहता है, जंग रहती है, और हम इससे वाकिफ नहीं होते। सो हम हमेशा दुखों को बुरा ना समझें, बल्कि ये जानें कि हमारी परख भी हो सकती है। दुखों में मजबूत और कायम रहें, खुदा के बारे में अपने नजरियात और ईमान में मजबूत और कायम रहें, ताकि परख में पूरे उतरे, तोले जाएं तो पूरे उतरे। दुख हमें मजबूत बनाने के लिए भी आते हैं। ये जितने लोग कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन सब को ये पता है कि जब तक उनके मसल्स ब्रेक नहीं होते, टूट फूट नहीं होती, उनमें डेवलप नहीं होते, उनकी बॉडी शेप अप नहीं होती, उनके जिस्म में ताकत पैदा नहीं होती, जब तक कि वो ज्यादा मेहनत ना करें। पहले पहले दर्द होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है बॉडी को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाते हैं और एक बेहतरीन बॉडी बिल्ड हो जाती है। मजबूत बनाने के लिए दुख आते हैं। हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हो जाएं। रोमियो के खत में लिखा हुआ है 5वें बाब में कि मुसीबतें सब्र पैदा करती हैं, सब्र से पुख्तगी आती है, स्ट्रेंथ आती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है हम में, हम मजबूत हो जाते हैं। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं और मुसीबत आ गई, हम मुसीबत में कायम रहे, हमने खुदा को नहीं छोड़ा, हमने मुसीबत का सामना कर दिया, तो हम मुसीबतों के आदी हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, हम पुख्ता हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है। जो पहलवान तैयार होते हैं वो किसी मजबूत पहलवान से रेसल करके, कुश्ती करके प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो सके। आरामदेह गद्दों पर बैठते हुए और तरह तरह की खूबसूरत ग़िज़ाएं एंजॉय करते हुए पहलवान नहीं बना जाता। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है, अखाड़े में उतरना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, और अपने से मजबूत मुखालिफ के साथ रेसल यानी कुश्ती करना पड़ती है, फिर मजबूत होते हैं। तो ईमानदार की जिंदगी में जब दुख आता है तो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है कि हम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाएं। हमारा क्वालिटी चेक हो जाता है कि इसमें ईमान मजबूत है, यह दुखों में कायम रहा है, अब ये नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग्स और जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। दुख हमेशा बुरे नहीं हैं, हमारी बेहतरी के लिए आते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, और दुख हमारी तालीम और तरबियत के लिए भी आते हैं, हमें सिखाने के लिए आते हैं। अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं, मैं सीख जाऊं खुदा की बातों को। दुख उठाने के बाद मैंने सीखा। हम जिंदगी में बहुत सा इल्म जुबानी सीख लेते हैं, किसी ने बता दिया हमने सीख लिया, लेकिन वो इल्म, वो मालूमात, वो तजर्बा हम कभी नहीं भूलेंगे कि जो हमारे ऊपर गुजर गया। लोग कहते हैं कि जी बिजली के स्विच में, इलेक्ट्रिक स्विच में उंगली नहीं देनी। हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं, बेटा इससे दूर रहना है। इल्म हो गया बच्चे को और वो दूर रहते हैं। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता किसी शख्स का ये तजर्बा हो जाए कि उसको इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, तो उसका इल्म सबसे ज्यादा मजबूत होगा। वो यही कहेगा कि जी इससे झटका लगता है, ये तकलीफ देती है। उसका इल्म मजबूत हो जाता है। दुख हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हम सीख जाएं। इब्रानियों 12वां बाब है और आयत नंबर 7 में
तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। सो दुख हमेशा बुरे नहीं होते, ये हमें सिखाने के लिए आते हैं। इन्हें फेस करें, सीख लें इनमें से, क्योंकि दुख वो इल्म बताते हैं जो कम लोगों के पास होता है। लोग सिर्फ जुबानी कलामी आपको बताएंगे बातें, लेकिन दुख आपको जिंदगी भर का मजबूत तरीन और खालिस तरीन, कीमती तरीन सबक दे जाएंगे। और मसीह, ईमान और इंजील की खातिर भी दुख आते हैं। ये वो दुख हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है कि खुशी मनाओ और शादमान होना। जब तुम्हारे ईमान की वजह से, खुदा पर ईमान की वजह से, मसीह खुदावंद पर ईमान की वजह से, अपने मसीही ईमान की वजह से और खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाने या उस पर ईमान रखने की वजह से, जब लोग हमें सताएं, जब लोग हमें दुख दें, जब लोग हमें लान तान करें, जब वो हमें परसिक्यूट करें, जब हम सफ़र करें इस वजह से, तो हम खुशी मनाएं और शादमान हों। हम एजाज समझें, हम इसे इज्जत समझें, हम इसे बहुत बड़ी बरकत समझें अपने लिए, क्योंकि ये दुख हमने अपने किसी गुनाह की वजह से नहीं सहे, अपनी किसी गलती की वजह से नहीं सहे। ये दुख हम पर आए हैं इब्लीस की और उसके नुमाइंदों की तरफ से, जो मसीह के मुखालिफ हैं, जो हमारे ईमान के मुखालिफ हैं और जो मसीह की इंजील के मुखालिफ हैं। ये उनकी तरफ से दुख आए हैं। खुदा के इल्म में है, खुदा की मर्जी और इजाजत से आ गए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बरकत की बात है, एजाज की बात है, इज्जत की बात है। शागिर्दों ने कहा, जब उन्हें यहूदियों ने पिटवा कर छोड़ दिया और कहा आइंदा यस्सु का नाम लेकर कोई बात ना करना, बाहर निकले पतरस और यूहन्ना, कहते हैं शुक्र है हम इस नाम की खातिर दुख उठाने के लायक ठहरे। सो दुख हमारी जिंदगी में एक बरकत बन के भी आते हैं, और दुख सहने में हम अकेले नहीं होते, खुदा भी हमारे साथ शामिल होता है। पुराने अहदनामे में यशायाह के सहीफे में से 63वां बाब है और आयत नंबर 9 है, उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ। खुदा के बारे में लिखा कि वो अपने लोगों यानी चुनी हुई कौम इस्राएल की मुसीबतों में उनके साथ मुसीबत ज़दा हुआ। हमारा खुदावंद दूर बैठ के इत्मीनान से तमाशाई बन के नहीं देखता कि उसके लोग दुख उठा रहे हैं। खुदा हमारे साथ दुख उठाता है। जब हननिया, मिसाइल और अजरिया को आग की भट्टी में फेंका गया, खुदा दूर नहीं रहा, वो इलाजादे की सूरत आग की भट्टी में उतर गया था। जब दानिएल को शेरों की मांद में डाला गया तो उसने फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। जब पतरस को कैद खाने में डाला गया कि इसको फिर मार दिया जाएगा, फरिश्ता भेजकर उसे कैद खाने से निकाल दिया था। जब मिस्र में दुख उठा रही थी कौम, खुदा उतरा और कहा मैं उतरा हूं ताकि अपने लोगों को छुड़ाऊं, क्योंकि मैंने उनका दुख देखा है और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। ज़बूर नंबर 23, दाऊद अपना तजर्बा, ईमान का तजर्बा, अपनी जिंदगी का तजर्बा बयान करता है। खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हमारे साथ मौत की वादी में से वो गुजरता है, हमारे दुखों में से वो गुजरता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमारे साथ गुजरता है। एक बहुत पुरानी ये एक मिसाल बनी हुई है, कहानी बनी है फुटप्रिंट्स के नाम से, कि एक शख्स को फ्लैशबैक में माजी के सारे वाकयात में ये दिखाया जाता है कि खुदा तुम्हारे साथ साथ था। 2 कदमों के निशान तुम्हारे हैं और साथ में 2 कदमों के निशान खुदा के हैं। तुम जहां जहां जाते थे 4 कदमों के निशान होते थे, एक तुम्हारे और खुदा के। कुछ जगहों पर उसे लगा कि ये 4 कदमों के निशान की जगह 2 निशान हैं, और उसने महसूस किया कि ये वो ज़माना था कि जब मैं बहुत दुख से गुजर रहा था, जब मेरी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां और तकलीफ़ें और अज़ियतें थी। तो उसने शिकवा किया, खुदा देख ले,
मुसीबतों में और दुखों में तूने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं अकेला उनमें से गुजरा, देख ले सिर्फ 2 कदमों के निशान हैं। तो उसे बताया गया, यह कहानी है सिर्फ, लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत को जाहिर करती है। खुदा ने उसे बताया कि ऐ मेरे बेटे, तुझे 2 कदमों के निशान मुसीबत के ज़मानों में दिख रहे हैं, लेकिन तुझे इस बात का एहसास नहीं कि वो तेरे कदमों के निशान नहीं हैं, वो मेरे कदमों के निशान हैं, क्योंकि तेरी उन मुसीबतों में मैं तुझे उठा के चल रहा था, इसलिए तू उन मुसीबतों के पार हो गया। हमारा खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता दुखों में, वो हमारे दुखों में हमारे साथ चलता, बल्कि हमें अपने सीने से लगा के, अपने बाजुओं में उठा के आग के दरियाओं से गुजर जाता है, वो समुद्री तूफानों से गुजार देता है, वो हमें दुश्मन की वादी में से गुजार के ले जाता है। सो कभी शिकवा ना करें, क्या खुदा तू हमारे दुखों में हमें छोड़ गया है, तूने हमें अकेला छोड़ दिया है। नहीं, वो सब कुछ देख रहा, वो सब कुछ जानता है, और वो आपके साथ है, बल्कि आपको उठाए हुए है। इस जमाने के दुख दर्द आसमानी जलाल के मुकाबले में कुछ नहीं है। पौलुस रसूल ने रोमियो के नाम लिखे हुए खत के 8वें बाब की 18वीं आयत में एक बड़ा भेद समो दिया है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। यह है दुखों की हकीकत कि इस जमाने में जो दुख हमें मिलते हैं उनकी कोई हैसियत ही नहीं, उनका कोई मुकाम नहीं उस जलाल के मुकाबले में जो हमें मिलने वाला है, जो यीशु मसीह के वसीले हमें अता होने वाला है, जो यीशु मसीह ने जिसकी हमें उम्मीद दे दी है। उस जलाल के मुकाबले में इन दुखों की कोई हैसियत नहीं है। हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम अगर दुखों से गुजर रहे हैं, हम अगर मुसीबतों से गुजर रहे हैं, हमारे बदन, हमारे जहन, हमारी रूहें अगर सताई जाती हैं, दुखों से हम गुजर रहे हैं, हमारी जान शिकंजों में फंसी हुई है, हम बंधनों और जुओं का शिकार हैं, हम दुश्मनों का शिकार हैं, परेशान ना हो। ये दुख, ये मुसीबतें, ये तकलीफें, ये सारे कर्ब, ये इस काबिल ही नहीं हैं कि उस जलाल के मुकाबले में इन्हें रखा जा सके। जो जलाल हमें मिलने वाला है वो जलाल बहुत भारी है, अज हद भारी जलाल है, वो तोला नहीं जा सकता किसी पैमाने पर। खुदा हमें वो खुशियां और वो बरकतें देने जा रहा है जिनके मुकाबले में ये दर्द, ये तकलीफ कुछ नहीं है। एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत दर्द से गुजरती है, लेकिन जब जन्म दे चुकती है तो वो दर्द भूल जाती है। वो अपनी औलाद की मुस्कुराहट, वो उसकी खुशी और उसकी शादमानी में इतनी मगन हो जाती है कि उसे एहसास ही नहीं रहता कि मैं किस दुख से गुजरकर इसे जन्म दे चुकी हूं। इसी तरह से जो जलाल खुदा हमें देने जा रहा है, जो खुशी और बरकत हमें देने जा रहा है, वो बरकत, वो खुशी, वो शादमानी, वो तसल्ली, वो उम्मीद, वो बादशाहत, वो हमेशा की जिंदगी, वो इख्तियार, वो तख्त, वो रौनक, वो इतनी बड़ी है जो आसमान पे हमें मिलेगी कि इस जमीन पर मिलने वाले दुख कोई हैसियत नहीं रखते उसके मुकाबले में। सो मसीह में अजीजों, दुखों से गुजरते हो, दुखों की हकीकत जान लो। खुदा नहीं देता, लेकिन आने देता है जिंदगी में, ताकि हम साफ और पाक हो जाएं, हम तालीम और तरबियत पालें, हम सीख लें, हम बेहतरीन हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं, हम खुदा के करीब हो जाएं और हम इस काबिल हो जाएं कि खुदा हमें मैदान में उतारे और हम फतहयाब होकर निकलें, हम खुदा के कामयाब फतहमंद सूरमा बन जाएं और हम उस जलाल की तरफ देखते रहें जो हमें मिलने वाला है। क्योंकि ज़माने में मिलने वाले दुख इस काबिल ही नहीं है कि उन पर तवज्जो की जाए। हमें बहुत आगे जाना है, इन दुखों ने पीछे रह जाना है, हमने आगे जाना है। और दुखों में हम अकेले नहीं हैं, हमारा खुदा हमें उठाए हुए दुखों से गुजार के लेके जाता है।
मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, चाहे आग की भट्टियों से गुजरना पड़े, चाहे मुझे बहरे कुलज़म में से गुजरना पड़े, खुदा मुझे उठा के मेरे साथ हो के मुझे लेके जाता है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मेरे और आपकी जिंदगी में भी चाहे किसी भी तरह का दुख है, किसी भी तरह की मुसीबत और तंगी है, खुदा उसमें से हमें जरूर निकालेगा और हमें उस जलाल में लेके जाएगा जो बयान से बाहर है, बहुत भारी है और इस जमाने के दुखों के मुकाबले में बहुत शानदार है। दुखों में हम क्या करें? अब दुख हैं, हम इंसान हैं, दुख तो आएंगे, दुख मिलेंगे और मिलते हैं। हम में से बहुत सारे इस लम्हे भी दुखों से गुजर रहे हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारी का दुख है, चाहे वो औलाद का दुख है, चाहे माँ बाप के हवाले से दुख है, चाहे वो बहन भाई के हवाले से दुख है, चाहे जीवन साथी के मुतालिक दुख है, चाहे वो अपने रोजगार और कारोबार के बारे में दुख है, चाहे कोई रूहानी बोझ और कर्ब है, चाहे रुपए पैसे की माली मुश्किलात का दुख है, चाहे कुछ छिन जाने का दुख है, चाहे जिंदगी का खतरा है, किसी भी तरह का कोई दुख है, गुजर तो रहे हैं हम सब दुखों से। तो क्या करें इन दुखों में? हकीकत तो जान ली हमने दुखों की कि ये उस जलाल के मुकाबले में कुछ नहीं जो हम पर जाहिर होने वाला है, और खुदा हमें दुखों में अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है। तो हम क्या करें इन दुखों में? बेदिल होकर हिम्मत ना हारें। कई लोग दुखों को देखकर गिव अप कर देते हैं और यहां तक हो जाता है कि जान दे देते हैं। अगर आप दुखों से गुजर रहे हैं या आइंदा कभी आपकी जिंदगी में दुख आ जाएं, तो गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, बेदिल नहीं होना, बल्कि दुखों के मुकाबले में खड़े होना है, कायम होना है, क्योंकि मेरी दानिश्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल ठहर सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। और कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, क्या चीजें हैं जो हमें मसीह से दूर कर देंगी? कौन सी ऐसे दुख और मुसीबतें हैं जो हमें तोड़ सकती हैं? हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें बेदिल नहीं होना, हमें कायम रहना है अपने हालात में, हमें मुस्तकिल मिजाज रहना है। इब्रानियों 12वां बाब और 3री आयत है, बस इस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालिफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। हमें हिम्मत नहीं हारनी। गुजर जाएगा वक्त, मुसीबत है, तंगी है, जुल्म है, खतरा है, तलवार का खतरा है, जान शिकंजे में आई हुई है, दुश्मन जान लेना चाहता है, या हमारे हालात इतने बुरे हो गए हैं, हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। वक्त गुजर जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी, बेदिल नहीं होना। जिंदगी बहुत कीमती है, इस पे हम तालीम पा चुके कि इंसानी जिंदगी की कद्र क्या है। बहुत कीमती है जिंदगी। अपनी जिंदगी खुदा का तोहफा समझकर इससे मोहब्बत कीजिए और डोंट गिव अप। हिम्मत नहीं हारनी, बेदिल नहीं होना। जो लोग क्विट कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं और अपनी जिंदगी खतरे में डाल लेते हैं कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, इससे बेहतर है कि हम अपनी जान ले लें, वो दूसरों का नहीं सोचते कि मेरे बाद मेरे खानदान और लोगों का क्या बनेगा। वो उन्हें अकेला छोड़ के बेयारो मददगार इस दुनिया से खुद तो चले जाते हैं, लेकिन मुसीबतें उनके लिए छोड़ के चले जाते हैं। हिम्मत से, हौसले से कायम रहें, मजबूत रहें। दुनिया की कोई मुसीबत और दुख हमें मसीह से जुदा नहीं कर सकती और हमें बर्दाश्त करना है। याकूब 5वां बाब और 10वीं आयत से, भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। नबी दुख सहते रहे, उन्हें नमूना समझें, सब्र करें, हौसला रखें, बेदिल नहीं होना। किसी नबी ने खुदकुशी नहीं की।
हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, बेदिल नहीं हुए। हमने भी हालात से, दुखों से, मुसीबतों से बेदिल होकर हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, एक काम जरूर करना है कि हमने खुद को एग्जामिन करना है, अपना एहतसाब करना है कि मेरी जिंदगी में यह दुख मेरे किसी गलत फैसले की वजह से तो नहीं, मेरे किसी गुनाह गलती की वजह से तो नहीं, मेरे अपने कामों की वजह से तो यह दुख नहीं आ गया। बाइबल हमें कहती है आदमी पहले अपने आप को आजमा ले, और इंसान से खुद से तो शायद मुश्किल होता है ये काम। तो खुदा से कह दें ज़बूर 139 के अल्फाज में, ऐ खुदा तू मुझे जांच देख, मुझ में कोई बदी तो नहीं। और खुदा से कहें जहां बदी है उसको फिर तू मुआफ कर दे और मेरी जिंदगी से उसे खारिज कर दे। खुदा से रजू करें, खुदा की तरफ लौट जाएं। आप दुख में हैं, खुदा की तरफ जाएं, खुदा से कहें खुदावंद तू इलाज कर इसका। खुदा से दूर नहीं जाना, खुदा की तरफ जाना है, खुदा की तरफ लौटना है। अगर अपने आप का एहतसाब करते हुए, खुद को एग्जामिन करते हुए मैं महसूस हो कि मेरी गलती है, तो खुदा के पास जाए और माफ़ी मांग ले, खुदा से अपना ताल्लुक दुरुस्त कर ले कि खुदा ये सज़ा ख़त्म कर दे, ये दुख ख़त्म कर दे, ये मेरी वजह से है। खुदा ज़रूर मुआफ़ करता है। खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखें कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसके इल्म में है और सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, और वो सब कुछ ठीक कर सकता है। कि मुसीबत के वक्त खुदावन तेरी दुआ सुने, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। दुख सहने के लिए, उठाने के लिए यस्सु की तरह तैयार रहे। उसे पता था कि इब्ने आदम के लिए ज़रूरी है कि वह दुख उठाए, और उसने हमें भी कहा जो मेरे पीछे होना चाहे हर रोज़ अपनी सलीब उठाए, दुख सहे। जो अपनी जान बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खो देने का तक को तैयार हो जाएगा वो असल में उसे बचा लेगा। और मुकाशफा दूसरे बाब की 10वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुकाशफा अपना फरिश्ते के ज़रिए यूहन्ना रसूल पर जाहिर किया तो उससे कहा जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। हम दुखों से ना डरे, जो हमारी जिंदगी में दुख आने हैं हम उनको फेस करने के लिए तैयार रहें, उनसे नहीं डरना। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। मुसीबत के दिन गिने हुए हैं, मुसीबत के दिन खुदावंद ने गिन रखे हैं, यानी थोड़े हैं, हमेशा के लिए नहीं है मुसीबत। एक वक्त है जिसमें दुख आएगा लेकिन वह गुजर जाएगा। खुदावंद ने कहा 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। दुखों की हकीकत यह है कि वो हमें यस्सु के जलाल में ले जाते हैं। दुखों की हकीकत यह है कि वो हमें ईमान में मजबूत कर देते हैं। दुखों की हकीकत यह है कि वो हमें मसीह से मिला देते हैं, कि हम उसके जैसे हो जाते हैं। जैसे वो बेटा है बाप का, हम भी बन गए बेटे। जैसे वो वारिस है हर चीज का, हम भी वारिस बन गए। तो शर्त साथ में ये रखी है, रोमियो 8वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक जरूर पढ़िएगा एक बार। जब हम उसके साथ मिरास में शरीक है तो सब कुछ में शराकत है हमारी। दुख भी उठाएं उसके साथ, मुसीबत भी सहने के लिए तैयार हों। सो जिंदगी के दुखों से घबराएं नहीं। खुदावंद के अल्फाज हैं, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर।